Hello, I OP Srivastava is going to explain regarding integration. What is integration? What are the standard formulas of integration? And how you will integrate the given function. In all these things I am going to explain. Okay. In fact, on screen I have already shown the formula set. But before that, before starting anything, let us know what is integration. इंटीग्रेशन होता क्या, दैट हैज टू बी स्टडी फर्स्ट. तो मैं उसको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ. व्हाट इज इंटीग्रेशन? सो लेट अस टेक व्हाट आई हैव मेंशन हियर. व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इंट्रोडक्शन दिया क्या. एज वी नो, इफ y इज a function of x, means the value of y depends on value of x. If x changes, only then y changes. Y is a dependent variable while x is known as independent variable. Then we get a term dy dx, that is known as rate of change of y with respect to x. Means y is changing with respect to x, means when change in x is 1, then what is the change in y, and that is known as rate of change of y, dy dx. Now reverse of it, and this rate of change we have already studied in differential calculus. The reverse process is known as integration. Means if the rate of change of y is given, how you can get the total y, total function, that is known as integration. So as you see here, if y is x power the 5, obviously y is a function of x here. Now then dy dx is equal to 5 into x power the 4. Then dy is equal to 5x power the 4 dx. dy is a small part of dy. So go on adding this y. Means ये जो वास्तव में क्या है, ये वास्तव में it is nothing but summation of y. This is why it is known as integration sign is nothing but simply deformed shape of s. S का s मतलब होता है sum, and the deform is integration. So all the smart of y means dy add, you will get the y. So here is the formula. Dy integration of dy means summation of y is y, dy is y, and means 5x power the 4 dx, that give you x power the 5. So what I mean to say, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा है. मैं एक बार हिंदी में फिर से समझा देता हूँ. यदि y x का फंक्शन है, यानी कि y का मान x पर निर्भर करता है, y तभी चेंज करता है जब x चेंज करता है, और उस वक्त वी गेट ए टर्म dy dx. इसको dy अपॉन dx भी कुछ पढ़ते हैं लोग, बट इसको कहना चाहिए dy dx. dy dx इज नथिंग बट सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष. यानी जब x में 1 का परिवर्तन होगा, उस वक्त y में जितना परिवर्तन होगा वही dy dx कहलाता है. अब इंटीग्रेशन में क्या है? वास्तव में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स पार्ट है. यानी कि dy dx अगर आपको मालूम है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y मालूम है, तो y कैसे निकालेंगे? इसको मैंने यहाँ लिया है एक एग्जाम्पल के रूप में. y is equal to x power the 5, then dy dx equal to 5x power the 4, यानी कि dy is what? 5x power the 4 dx. dy means a small part of y, and go on adding. सारे स्मॉल पार्ट dy को ऐड कर दीजिए. ये इंटीग्रेशन मतलब s का बिगड़ा हुआ रूप, तो y हो जाएगा, एंड dy integration of dy, that is integration of 5x power the 4, that gives you x power the 5. So it is the reverse process of it. Okay, मैं इसके हिसाब से एक फार्मूला सेट आपको दिखा रहा हूं. ये इसका एक फार्मूला सेट है जो सिंपल फार्मूला है, जो हर जगह यूज होगा. यहीं से इंटीग्रेशन शुरू होता है. I is equal to x power the n dx equal to x power the n plus 1 upon n plus 1. इंटीग्रेशन में x का पावर एक बढ़ जाता है, जबकि डिफरेंशिएशन में घट जाता है. x पावर n plus 1 upon n plus 1.
हाँ, n शुड नॉट बी इक्वल टू 1 -1। n का वैल्यू -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये संभव है। ओके, ऑलराइट। सो जो पहला फॉर्मूला है एक्स पावर दी एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर दी n+1 अपॉन n+1। दूसरा है e पावर दी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर दी एक्स डी एक्स इक्वल टू e पावर दी एक्स। आई इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। आप तो समझ ही रहे होंगे कि लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स है, तो 1 एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होगा। ए पावर दी एक्स का इंटीग्रेशन ए पावर दी एक्स अपॉन लॉग ए। साइन एक्स डी एक्स मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, क्योंकि माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स होगा। सिमिलरली कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx equal to sec x। cosec square dx integration of cosec square dx equal to minus cot x। integration of cosec x into cot x equal to minus cosec x। integration of 1 upon x square dx, that is tan inverse x। integration of -1 upon 1 plus x square is cot inverse x, and integration of -1 upon 1 plus x square is equal to cot inverse x। integration of 1 upon under root 1 minus x square dx equal to sin inverse x। integration of -1 upon under root 1 minus x square is equal to cos square x। Similarly, integration of 1 upon x into under root x square minus 1 is nothing but simply sec inverse x। integration of -1 upon x into under root x square minus 1 dx equal to cosec inverse x, right। ये इंटीग्रेशन का चार्ट। मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, सारे फॉर्मूला मैंने कवर्ड कर दिया। बट क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूले के रूप में नहीं आएगा, उसमें आपको जो जनरल क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे वो कुछ इस तरह से नहीं होगा कि आप उसमें फार्मूला डायरेक्ट लगा दें, उसको कई मरतबा मैनिपुलेशन करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल मैंने कुछ सेट ऑफ एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए ले रखा है, वो मैं समझा रहा हूँ। अब सेट 1 खोलता हूँ मैं। देखिए ये इतने क्वेश्चन लिए हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पावर दी 4, ये सारे क्वेश्चन है। दीज आर क्वेश्चन ऑफ बेस्ड ऑन एक्स पावर दी n, राइट। ये सारे एक्स पावर दी n पर बेस्ड करके हैं। ए पावर दी एक्स तो सिंपल बात है, जैसे एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर दी 4/4, क्योंकि फॉर्मूला एक्स पावर दी n डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर दी n +1/n+1। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स क्यूब यानी कि एक्स पावर 3/2, तो एक्स पावर 3/2 +1/5/2, दैट इज 2/5x/2। सिमिलरली एक्स स्क्वायर पावर 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल टू एक्स पावर 2/3। आफ्टर इंटीग्रेशन बिकम एक्स पावर 2/3 +1/2/3 +1, फाइनली इट कम्स यू दिस मच। उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर -3 यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर -3/2 dx इक्वल टू x power the -3/2 +1 -3/2 +1, x power the -1/2 upon -1/2, that is equal to -2 into x power the -half। इंटीग्रेशन ऑफ 2 पावर दी एक्स dx, ये किस पर है? a पावर दी x पर। a पावर दी एक्स dx इक्वल टू a पावर दी x अपन log है, उस हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ 2 पावर दी एक्स dx इक्वल टू 2 पावर दी x अपन log 2। इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पावर दी x यानी कि 1/4 पावर दी -x, सेम चीज, that is equal to -4 पावर -x log 4। इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x का तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x, इनफैक्ट में थोड़ा सब्सटीट्यूशन लगेगा, वो यहाँ नहीं पूछना चाहिए था। फिलहाल ये यहाँ हमने फॉर्मूला यूज किया e पावर दी इंटीग्रेशन ऑफ e पावर दी ax dx इक्वल टू 1/a e पावर दी x, उस हिसाब से ये हो गया। और ये सारे क्वेश्चन आप एक एक करके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, जो स्टार्टिंग में आपको दिया रहेगा वो आपको करना है, ठीक है। वैसे मैंने आपके लिए एक हमने वेबसाइट भी बनाया है, उसका एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है। एक तो हमारा मेल एड्रेस है, देखिए omrdsco@gmail.com।
इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम भेज सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और पॉसिबल होगा तो वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, अपलोड कर दूंगा। हमारा एक वेबसाइट है, उसका नाम है sites.google.com/view/om गुरुकुल/home। इस पर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे मेरे पास तो आप ये साइट खोल सकते हैं, बिना रजिस्टर्ड हुए नहीं खोल सकते। रजिस्टर्ड हो गया तो खोल के आप देखेंगे, विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक एंड वीडियोस रिगार्डिंग ईच चैप्टर, विल गेट इट। खैर, हम दूसरा सेट ऑफ प्रॉब्लम भी आपको करके दिखा रहे हैं। नेक्स्ट सेट, ये और भी एक नया सेट लिया है, इसमें थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश की है। जैसे 3 इंटू एक्स पावर दी माइनस 5 dx, एक्स पावर दी एन वाला तो लगेगा ही, लेकिन यहाँ 3 एक्स्ट्रा है। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन मिक्स कर दिया, यहाँ भी वही किया हमने। उस हिसाब से एक एक सवाल अगर देखा जाए तो कैसे इंटीग्रेशनों का सोल्यूशन हमने यहाँ लिख रखा है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू एक्स पावर दी माइनस 5 इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स पावर दी -5। इनफैक्ट मैं इसको यार ठीक कर देता हूँ, आपकी समझ में लगता नहीं आ रहा, हमारे ख्याल से इसका विजन क्लियर नहीं है कि वो एक्स पावर दी -5 नहीं लग रहा है, तो मैं दिखा देता हूँ। एक्स पावर दी -5 हो जाएगा वो एक्स पावर दी -5, और यहाँ भी मैं इसको भी ठीक कर दे रहा हूँ। ओके, हाँ अब देखें आप, अब क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू एक्स पावर दी -5 इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स पावर दी -5 प्लस 1/4। दैट इज हियर एक्स पावर दी -4, इनफैक्ट इट इज एक्स पावर दी -4। इसको भी मैं ठीक कर दे रहा हूँ, देखने में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ये गलतियां हमसे हो गई हैं। ओके, तो हियर इट इज एक्स पावर दी -4। अब ये मिक्सचर है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, सबका मिक्सचर करके। तो इसमें अगर कई टर्म है तो हर टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन करने से काम चल जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन sin x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, 2/x पावर दी 6 यानी कि 2 इंटू एक्स पावर दी -6। दिस वे इसका इंटीग्रेशन होगा 2 इंटू एक्स पावर दी -6 प्लस 1/-6 प्लस 1। दैट गिव्स यू finally it gives you sin x plus log x plus 2/5 into x power the -5. Similarly here it is a sec square x into e power the x into under root 2 upon under root x power the 7। 2 अंडर रूट से बाहर है इनफैक्ट, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स इंटू ई पावर दी एक्स, sec स्क्वायर एक्स इंटू ई पावर दी एक्स -2 इंटू एक्स पावर दी -7/2। इसको क्लियरिफाई किया है, थोड़ा मैं और क्लियर कर देता हूँ, इसको और क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा लगता है कि हमको आपकी क्लियर नहीं है, ये तीसरे लाइन में है। हाँ, थर्ड सेक स्क्वायर एक्स वाले प्रॉब्लम में एक्स पावर दी रूट अंडर रूट फ्रैक्शन 2 इंटू ओ, अच्छा दो भी इसके मतलब ये दो भी इसके अंदर है इंटीग्रेशन के अंदर। खैर इसको हम बाहर कर दे रहा हूँ, अंडर रूट यहाँ हम कर देते हैं, मैं यहाँ सवाल को 2 कर देता हूँ, यहाँ हम कर देते हैं 1/ओके। तो सवाल को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, 2 इंटू अंडर रूट 1/x पावर 7, 2 बाहर है तो इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स ये ई पावर स्क्वायर अरेंज करिए तो 2 इंटू एक्स पावर -7। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x ई पावर दी एक्स का ई पावर दी एक्स -2 इंटू एक्स पावर दी -7/2 यानी -2 इंटू एक्स पावर दी -7/2 प्लस 1/-7/2 प्लस 1। एंड आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस यू विल गेट दिस वन। हाँ, ये जो सवाल है एक्स पावर दी 5 -7 इंटू एक्स पावर दी 3/2 इंटू सॉरी प्लस 8 इंटू एक्स पावर दी 7/4 इंटू एक्स पावर दी 1/9।
इसका इंटीग्रेशन आप ये नहीं कि हर टर्म का अलग अलग यूं कर दे, ये फ्रैक्शन में इसको अलग अलग करना पड़ेगा. सो फर्स्ट टर्म विल बिकम एक्स पावर दी 5 अपॉन 4 इंटू एक्स पावर दी 4 इंटू एक्स पावर दी 1/9. 1/4 बाहर कर दिया तो होगा एक्स पावर दी 5 अपॉन एक्स पावर दी 1/9. ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स पावर दी 3/2 अपॉन एक्स पावर दी 1/9. ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स पावर दी 7 अपॉन एक्स पावर दी 1/9. सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, 1/4 एक्स पावर दी 5 माइनस 1/9 माइनस 7 इंटू एक्स पावर दी 3/2 माइनस 1/9 8 इंटू एक्स पावर दी 7 माइनस 1/9. सो अब इसका इंटीग्रेशन जब हम करने जाएंगे तो ये होगा 44/9. इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/4 इंटू एक्स पावर दी 44/9 प्लस 1. उसी तरह से ये हो जाएगा 25/18, तो 25/18 प्लस 1. अब इस तरह से एक एक करके इंटीग्रेशन सिंपल फॉर्मूला लगा के कर देंगे, देन विल गेट इट. हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. साइन क्यूब एक्स प्लस कास क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स. तो अगर आप गौर से देखें तो कुछ नहीं, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है. तो साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स प्लस कास क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स. ये हमने अलग अलग कर दिया. अब इसको फिर से देखा जाए तो साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स विल बिकम सेक एक्स इंटू टेन एक्स. cos cube x upon sin square x into cos square x will become cos x into cot x. अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x और इसका इंटीग्रेशन sec x और इसका इंटीग्रेशन माइनस cosec x. सो दिस वे यू कैन गेट द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन. इसके आगे जो क्वेश्चन है थोड़े टिपिकल होंगे, जिसको हम बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड. दैट आई विल डिस्कस इन my next video. One thing, second thing, if you got any doubt, please mail me. My mail address is already mentioned here. मैंने यहाँ मेल एड्रेस अपना दिखा रखा. मैं ये सॉरी ये मेरा मेल एड्रेस है. मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. मेरा मेल एड्रेस है, ये है मेरा मेल एड्रेस omrdso@gmail.com. ये मेरा मेल एड्रेस है. आप अपना प्रॉब्लम यहाँ भेज सकते हैं कि प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा, हो सकेगा तो उसका वीडियो बना के समझाऊंगा. और मेरा वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे आप जाइए तो आपको वहाँ क्वेश्चन मार्क, बहुत सी क्वेश्चन, वीडियोस, अनसॉल्व पेपर, बहुत कुछ मिलेगा आपको. लॉट ऑफ थिंग विल गेट, फुल कोर्स यू विल गेट देयर. बट फॉर दैट यू हैव टू बी रजिस्टर्ड विद मी. इफ यू वांट टू रजिस्टर योरसेल्फ, please send your Gmail address to me. I will register you and I will inform you. Then you can utilize that. And that is all are free. Okay. Thank you. Thank you for watching the videos.